Good morning SVPNs. I hope student you all are fit and fine. Today we are going to start our next topic. The topic related to class 7th and the chapter is 3 from civics book. Okay, let's start student. Before starting the chapter, we discuss about the introduction of this chapter. Okay. In previous classes, in class 6th, you already learned about the government. What is government? How government work? And in 7th class also, and in last chapter, you also learn about the government. In this chapter, we also learn about the government. And you know that how many parts of, how many levels of the government. There are 3 levels of the government. First is local level, second is state level, and third is national level. You already learned about the local level in class 6th, and you learn in class 7th about state level, and in next class you learn about national level. Okay, local level, the level related to are locally, like village level, village based or district based. Okay, now we come on state. How state work, state कैसे काम करती है. India, look at this. India has divided into many states. India has divided into 28 states. And how state work, this is our chapter name. So let's learn about the chapter how state government work. State government कैसे काम करती है. This is your chapter number 3 from civics book. Okay student, so state, there are 28 states in India, and state government work by level of state. We understand by a story. So let's discuss one story about state. There are 2 girls and discussing about their states, and they read newspaper. In this newspaper, they see that the villagers have faced the problem, and the problem is water shortage. वाटर शॉर्टेज वहां पर चल रही थी. 3 वीक में वहां एक बार पानी आता था. एंड वी डिस्कस द डिस्ट्रिक्ट पतालपुरम. इन पतालपुरम डिस्ट्रिक्ट there is water shortage, and many people faced many problems. The hospitals are overflow with patients, and many people were die, and the girls, by bicycling move on the road, and one police woman say stop. So one girl asked why we are not going to ahead, and she said there was a one rally. वहां एक रैली है और भीड़ है जिसकी वजह से आप आगे नहीं जा सकते. तो गर्ल्स जो हैं वो पूछती है कि किस चीज की रैली. फिर वो आगे एमएलए के रेजिडेंस के आगे जाकर देखती हैं तो
घर के बाहर बहुत सारी भीड़ जमा है और एक व्यक्ति माइक पर बोल रहा है। अब जो व्यक्ति माइक पर बोल रहा है वो कौन है और ये एमएलए वर्ड कहां से आया? सो लेट्स रीड दीज टर्म। व्हाट इज एमएलए? Firstly, what is the full form? Full form of MLA is Member of Legislative Assembly. Now the question arise here, what is legislative assembly? एक ऐसी सभा जिसमें सभी एमएलए वो कहाँ बैठते हैं? इस लेजिस्लेटिव असेंबली में बैठते हैं और डिस्कस करते हैं अबाउट द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट एंड व्हाट वी आर डूइंग इन आवर स्टेट, okay, and what development we are doing in our state and the problem faced by the people. They discussed in this assembly. Now, how MLA elected? MLA कैसे elect किया जाता है? MLA elected. MLA elected by द वोटिंग। आप सबको पता है एक प्रोसेस है वोटिंग, जिसके द्वारा सभी एमएलए या सभी पीपल्स को क्या किया जाता है? चुना जाता है। अब हमारी स्टेट, हम एशिया कॉन्टिनेंट में रहते हैं और हम कौन सी स्टेट में रहते हैं? तो हम हरियाणा स्टेट में रहते हैं और हरियाणा में क्या है? बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज है। अब ये कॉन्स्टिट्यूएंसीज क्या होती हैं? सो लेट्स डिस्कस अबाउट द कॉन्स्टिट्यूएंसी। सपोज दिस इज हरियाणा एंड इन हरियाणा बाय एरिया वी डिवाइड बाय एरिया डिवाइड करके यहाँ पे कुछ हरियाणा को कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बांट दिया गया, यानी एरिया वाइज निर्वाचन क्षेत्र होते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंसीज इज निर्वाचन क्षेत्र एंड हरियाणा में टोटल 90 कॉन्स्टिट्यूएंसीज है। अब इस 90 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में एक एमएलए होता है, एक एमएलए नहीं होता है, इन सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज के एमएलएज हैं और बहुत सारे मेंबर्स हैं। मेंबर्स क्या करते हैं? मिनिस्टर्स क्या करते हैं? मंत्री क्या करते हैं? अलग अलग काम होते हैं मंत्री के पास, ठीक है। अब इन एमएलएज का ये जो हमने अभी यहाँ एक क्वेश्चन अराइज किया था, ये एमएलए हम यहाँ आगे सॉल्व करते जाएंगे कि ये जो एमएलएज है ये इन कॉन्स्टिट्यूएंसीज के हेड हो गए। अब इन एमएलएज का भी तो कोई हेड होगा ना। सोचो कौन होगा हेड? जैसे हमारे इंडिया का हेड कौन है? पीएम, प्राइम मिनिस्टर। ऐसे ही स्टेट का एक हेड होता है। अब उस स्टेट के हेड को क्या बोलते हैं? सीएम। व्हाट इज सीएम? चीफ मिनिस्टर। ओके, तो इन सारी 90 कॉन्स्टिट्यूएंसीज का एक हेड है जिसको हम बोलते हैं सीएम। क्या बोलते हैं? सीएम। अब ये सीएम और ये जो एमएलएज हैं ये चुने जाते हैं बाय थ्रू इलेक्शन। इलेक्शन में जब वोटिंग होती है, जिस पार्टी को सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं और जो मेजॉरिटी में होती है, तो उस मेजॉरिटी का मतलब है बहुमत, यानी जिसको सबसे ज्यादा मत मिलते हैं, वोट मिलते हैं,
वो पार्टी जीत जाती है। ठीक है, मान लो कि बीजेपी जीत गई और बीजेपी के पास 44 सीट है। उसके बाद जो बची हुई पार्टीज हैं जैसे कांग्रेस, इनेलो या अनदर पार्टीज, ये सारी पार्टीज जो हैं इनको क्या बोलेंगे, इनको एक वर्ड इनके लिए दे देते हैं, इनके लिए देते हैं ओपोजिशन। ओपोजिशन, ये सारी पार्टीज ओपोजिशन में है, यानी हमारे अपोजिट में बैठती है। बीजेपी क्या हो गई, पार्टी हो गई, रूलिंग पार्टी, इसको हम बोलेंगे रूलिंग पार्टी, जिसका राज चल रहा है, दैट इज बीजेपी। अब हमारे देश में बीजेपी का राज है। बीजेपी हरियाणा में से भी जीत गई है और हरियाणा में जो एमएलएज हैं, जो सीएम है, वो किससे रिलेटेड है, बीजेपी पार्टी से रिलेटेड है। ठीक है, बीजेपी से रिलेटेड हो गए। तो अब ये जो बाकी सारी पार्टीज हैं ये है ऑपोजिशन। ठीक है, तो अब आते हैं वापस लेजिस्लेटिव। अब ये लेजिस्लेटिव असेंबली में ये सारे जो मेंबर्स हैं एमएलए। सो लेट्स स्टार्ट लेजिस्लेटिव असेंबली। अब लुक एट हियर, this is the picture of legislative assembly. Here is number of rows and desks. Okay, यहाँ डेस्क बिछे होते हैं, यहाँ रूलिंग पार्टी बैठती है और साथ में ऑपोजिशन बैठती है। और आप सबको मैं बता दूं कि ये जो रूलिंग पार्टी होती है इसमें सारे एमएलए और हमारे चीफ मिनिस्टर ये बैठते हैं, जिनको जनता ने इलेक्ट किया है। ये जनता के द्वारा इलेक्ट होके आए हैं, जिनको हमने रूलिंग पार्टी बना दिया है। अब आपको एक और चीज बता दूं, मान लो कि हमें किसी कंपनी में जॉब करना है। अब जॉब करने के समय एक अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाता है। ठीक है, अब ये अपॉइंटमेंट लेटर जो है वो हमें कौन देता है, कंपनी में बॉस देता है ना। तो यहाँ पर जो पर्सन्स है एमएलए और सीएम है, इनको अपॉइंट कौन करता है, इनके जो मिनिस्टर्स हैं उनको अपॉइंट कौन करता है, सोचो कौन अपॉइंट करता है। ठीक है, तो यहाँ इनको अपॉइंट करता है गवर्नर। कौन अपॉइंट करता है, एमएलए और चीफ मिनिस्टर्स को गवर्नर शपथ दिलवाता है। ठीक है, यहाँ शपथ ली जाती है। अपॉइंटमेंट का मतलब है कि एक शपथ ग्रहण करना कि हम अपना काम अच्छे से करेंगे। तो यहाँ गवर्नर हेल्प करता है अपॉइंटमेंट में इन पर्सन्स की। अब यहाँ एक रूलिंग, जब लेजिस्लेटिव असेंबली अरेंज होती है तब वहां पे होता क्या है, वहां होता है डिबेट। अब इस डिबेट में व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिबेट, डिबेट मतलब आर्गुमेंट्स करना। किस चीज पे आर्गुमेंट्स करना, कि कालपुरम डिस्ट्रिक्ट में जो वाटर शॉर्टेज प्रॉब्लम थी वो अब ये एमएलए यहाँ डिस्कस करेंगे और ये डिबेट स्टार्ट करेंगे। डिबेट मतलब एक ऑपोजिशन एमएलए खड़े होके ये कहेगा कि इस पतालपुरम डिस्ट्रिक्ट का जो मैनेजमेंट है वो अच्छा नहीं है, यहाँ हेल्थ मिनिस्ट्री अच्छे से काम नहीं कर रही है। तो ये डिबेट हम अपने चैप्टर के थ्रू, बाय थ्रू आवर चैप्टर हम पढ़ेंगे इन जूम क्लासेस। सो बाय बाय स्टूडेंट।